Hello guys, welcome to Placement Talk 786. Hope you all are doing great. If you haven't subscribed to our channel then please do so and hit the bell button to get the latest off-campus updates, government job updates and companies placement papers. So guys, today I came back with new opportunity for you from CDK Global Company. CDK Global Company is currently hiring application engineer for 2021 batch students and your CTC will be 4 LPA. So this is off-campus drive. Let's first tell you about CDK Global Company. Your job designation will be application engineer category. Your job category will be IT jobs. क्वालिफिकेशन चाहिए इस जॉब के लिए BE BTech ME MTech। बैच 2020 बैच स्टूडेंट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस चाहिए फ्रेशर्स का। सैलरी आएगी आपकी 4.5 LPA और आपका जॉब लोकेशन रहेगा हैदराबाद और ऑनलाइन टेस्ट डेट है 23 to 31 दिसंबर 2020। अब मैं आपको जॉब डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ पहले। बैचलर्स और मास्टर डिग्री इन CS IT विथ 0 to 1 years एक्सपीरियंस चाहिए। 2020 बैच CS एंड IT विथ 60% एकेडमिक थ्रू आउट। तो आपको 2020 बैच CS और IT स्टूडेंट होना चाहिए जिसमें आपको 60% थ्रू आउट होनी चाहिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में। गुड नॉलेज ऑन .NET एंड जावा स्क्रिप्ट इज फेवरेबल। आपको गुड नॉलेज होना चाहिए .NET और जावा स्क्रिप्ट का, तो प्लस पॉइंट है आपके लिए। एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट पेज अजाइल लेड इन्वायरमेंट्स। आपको आप एबल होने चाहिए कि फास्ट पेज इन्वायरमेंट आप वर्क कर सके। एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस रोल। वर्क क्लोजली अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर अलाइनमेंट विद ब्रॉडर टेक्निकल स्ट्रेटेजी। प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस रोल इज application engineer is responsible for designing, developing and implementation of the applications. You have to build applications up to, up to starting to and responsible for existing software in addition to new development applications. Engineers perform debugging, testing, code improvement and redesigning tasks. You have to become an expert in the domains covered by our existing application and within our industry. Selection process for this job role is first first there will be online test which consists of technical MCQ of JavaScript, React.js and PS. Then there is second, if you clear the first round then it is a technical interview. If you clear technical interview, the third round will be project manager interview. If you clear project manager interview, then last round will be HR discussion. If you clear all four rounds, then you will selected for this role. All interested candidates and eligible candidates can attend the online test from any time between 10 a.m. 23 December to 6 p.m. 31 December 2020. Interview date will be shortlisted. इंटरव्यू डेट विल बी इन्फॉर्म टू दी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। तो आपको इंटरव्यू की डेट आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी आपको। अब ऑनलाइन टेस्ट की लिंक दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जैसे कि आपका माय एनाटॉमी में रहेगा। माय एनाटॉमी में आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप खोलोगे माय एनाटॉमी का तो CD के ग्लोबल का CD के CSMT UI दिसंबर 20 अभी। ऑनलाइन को टेस्ट स्टार्टिंग कर देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रोसीड टू टेस्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा के MTUI दिसंबर 2020 का। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसमें आपको नेम एंटर करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रेज्यूमे आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका। तो मैं अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं आपको टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। आफ्टर फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू नीड टू प्रोसीड द टेस्ट। So guys, online test consists of 6 sections. First section will be JavaScript, that is window proctors. Second section is 14 MCQ HTML
नहीं, टोटल 3 सेक्शंस वर देयर: जावास्क्रिप्ट, HTML and CSS, React JS section. JavaScript section has 14 MCQs, HTML section has 13 MCQ, and React JS section has 10 MCQ and 2 submission question. Let's begin the test. First question will be, what is the difference between the following two in JavaScript where my, so you have to see that question. Variable my string equals to new string male, where my string literal equals to male. Option दिए हैं, both are primitive strings, both are objects. First one is object, second is primitive string. First one is primitive string, second is object. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ इसका आंसर, बोथ आर ऑब्जेक्ट्स. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन जेसन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अलाउड. जेसन में कौन कौन सी चीज अलाउड नहीं है, तो इसके अंदर मल्टीपल अपन सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में. फंक्शंस और वेरिएबल दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशन, ग्लोबल वेरिएबल्स, नन ऑफ द अबव. तो मैं दो चूज कर लेता हूँ रैंडमली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ. व्हाट विल बी द आउटपुट इन द फॉलोइंग जेएस कोड स्निपेट. तो आपको जेएस कोड स्निपेट दिख रहा होगा, इसका अपन को आउटपुट बताना है. तो ऑप्शन दिए 26, 27, 14, 25. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 20. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल दिस जावास्क्रिप्ट कोड आउटपुट. ये जावास्क्रिप्ट कोड दिया हुआ है, तो आपको इसका आउटपुट बताना है. ऑप्शन दिया अनडिफाइंड, डिफाइंड, एन फंक्शन और फंक्शन. जैसे ये क्वेश्चन दिया, व्हाट विल बी द जावास्क्रिप्ट कोड आउटपुट. ये कोड है, इसका आपको आउटपुट बताना है. तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ इसके अंदर अनडिफाइंड फंक्शन. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. ऑप्शन दिया 40.5, 55.5, नल, अनडिफाइंड. तो ये कोड है, देख लो आप, कोड देख लीजिएगा आप. आपको इसका आउटपुट बताना है 40.5, 55.5, नल. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 55.5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. तो इसका आपको बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो जिसमें आपको वेरिएबल सैम्पल 1 इक्वल्स टू 10, सैम्पल 2 इक्वल्स टू 10, वेरिएबल सैम्पल 3 इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट बना दिया है. तो आपको आउटपुट बताना है सैम्पल 1 इक्वल्स टू सैम्पल 2 है कि नहीं. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स. ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ ट्रू ट्रू. अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस सेक्शन में टोटल 14 क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. तो ये कोड दिख रहा है आपको, इसका आउटपुट बताना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ ऑप्शन सेकंड, 4 और 5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड इज रन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ये अगर ये जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा तो कौन सा ट्रू रहेगा. ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन दिए हैं इसके, इस कोड के. ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, सी इक्वल्स टू की इक्वल्स टू न्यू वैल्यू. तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ कोई भी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जेएस कोड स्निपेट. तो इसमें जे और जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में अपन को सिर्फ कोड का आंसर ही देना है. तो आपको इस सेक्शन में, जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन में सिर्फ आपको आउटपुट बताना है. तो अगर तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, जो कि 10th क्वेश्चन है. ये दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट. इसके अंदर भी आपको आउटपुट बताना है.
ये कोड है। तो गाइस आपको ये कोड दिख रहा होगा, इसका अपन का आउटपुट बताना है। ऑप्शन दिए फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ ट्रू ट्रू। अब तरफ चलते हैं, जो कि 11 क्वेश्चन। अब इसके अंदर बताना है व्हाट विल बी प्रिंटेड, ये स्क्रिप्ट दी हुई है। ऑप्शन दिए नैन जीरो अनडिफाइंड नैन 5, तो मैं जीरो पर क्लिक। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन, जो कि आउटपुट निकालने वाला है। What is the output when call function and apply methods are apply in the below code? कॉल और अप्लाई मेथड जब कॉल होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिए है हेलो 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 हेलो, नो आउटपुट, हेलो हेलो और नो आउटपुट। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ नो आउटपुट और हेलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट इनटू द कंसोल, तो ये वाला कोड क्या प्रिंट करेगा कंसोल में, तो आपको बताना है इसका आउटपुट। ऑप्शन दिए 3 बॉटल्स, नो मोर बॉटल्स, 3 बॉटल, 2 बॉटल्स, 1 बॉटल्स, नो मोर बॉटल्स और नन। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 3 बॉटल्स, 2 बॉटल्स एंड 1 बॉटल्स। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस सेक्शन के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए console डॉग डॉट लॉग ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 2। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया अपना, जो कि है HTML और CSS का। तो अपन को बताना है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया लाइन 3, लाइन 2, लाइन 5 और लाइन 4। तो मैं लाइन 4 चूज कर लेता हूँ रेंडमली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉन्ट रिलेटेड एट्रीब्यूट इन HTML, दैट इज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, कैप्शन ऑफ द अबव। तो मैं फॉन्ट स्टाइल पर चूज कर लेता हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साइज विल टेक्स्ट बी, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, ये क्वेश्चन को देखते हुए। ऑप्शन दिए 18 पॉइंट, 12 पॉइंट, 1.5 पॉइंट और 36 पॉइंट और 8 पॉइंट, 24 पॉइंट। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ 24 पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, फोर्थ सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट और इनिशियल वैल्यू फॉर पोजिशन एट्रीब्यूट, पोजिशन एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स्ड। नेक्स्ट, तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट और इनिशियल वैल्यू फॉर द पोजीशन एट्रीब्यूट। ऑप्शन दिए स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ एब्सोल्यूट। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है विच ऑफ द CSS प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। ऑप्शन दिए विड्थ एंड हाइट, पैडिंग, बॉर्डर, ऑल ऑफ द अबव मेंशन। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ बॉर्डर। तो इसमें ऑप्शन दिए मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल। तो मैं इसमें ऑल ऑफ द अबव कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिससे आपको ये दिया यू नीड टू क्रिएट ए टेबल विथ हेडर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आंसर इज करेक्ट। आपको हेडर के साथ टेबल बनाना है, तो कौन सा आंसर सही रहेगा। ABC, तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ बी ऑप्शन। ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ABC दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए चूज कर लेता हूँ इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो मेंशन आर एम्प्टी एलिमेंट्स इन HTML, मल्टीपल एम्प्टी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं HTML में, पैराग्राफ, इमेज। तो मैं पैराग्राफ को चूज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हाट इज इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्प्रेडिंग अ सेल थ्रू मल्टीपल कॉलम्स। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंसीडर द फॉलोइंग HTML कोड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2। तो कोड दिख रहा होगा आपको, इसका टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 का कोड बताना है आपको।
तो ऑप्शन दिए 15 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। मैं 20 पिक्सल पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू सेट अ पोजीशन ऑफ div क्लास ब्लॉक एलिमेंट सो दैट इट विल ऑलवेज रिमेन इन द सेम प्लेस व्हेन यू स्क्रॉल द पेज। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं तो इसमें रैंडमली चूज कर लेता हूँ ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हाईलाइट द पैराग्राफ टैग इन द फर्स्ट माइनोटोमी क्लास बट नॉट अदर p टैग्स इन अदर क्लासेस। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वल स्टाइल टू स्पैन मार्जिन 10 पिक्सल, 5 पिक्सल और 15 पिक्सल। इसके इक्वल स्टाइल कौन सी होगी? तो मैं फर्स्ट स्पैन चूज कर लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेक्शन। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अपन थर्ड सेक्शन की तरफ आ गए जो कि रिएक्ट जेएस एंड पीएस का। तो ऑप्शन कुछ में 12 क्वेश्चन है जिसमें आपको 24 मिनट्स मिलेंगे, 25 मिनट्स। तो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द यूज इन रिएक्ट जेएस टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। ऑप्शन दिए बोथ बी एंड सी, ओरिजिनल डोम, वर्चुअल डोम। तो मैं ऑप्शन चूज कर लेता हूँ वर्चुअल डोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो एक्ट्स एज द इनपुट ऑफ ए क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ऑप्शन दिए फैक्ट्री, प्रॉप्स, क्लास, रेंडर। तो मैं रेंडर भी चूज कर लेता हूँ रेंडर। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द डिक्लेरेटिव वे टू रेंडर ए डायनेमिक लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन वैल्यूज इन एन एरे। ऑप्शन दिए यूजिंग द कंपोनेंट, यूजिंग द रिड्यूस एरे मेथड, यूजिंग द एरे डॉट मैथ और विथ अ फॉर और वाइल लूप। तो मैं रैंडमली चूज कर लेता हूँ यूजिंग द एरे डॉट मैथ मेथड। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये, व्हाट विल हैपन इफ यू रेंडर एन इनपुट एलिमेंट विद डिसेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स। ऑप्शन दिए इट विल बी रेंडर्ड एज डिसेबल्ड, इट विल बी रेंडर्ड एट ऑल, इट विल बी रेंडर्ड एज इनेबल्ड। तो मैं इनेबल्ड पर क्लिक कर देता हूँ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट आर द टू वेज दैट डेटा गेट्स हैंडल्ड इन रिएक्ट, प्रॉप्स, मॉडल, स्टेट और कंपोनेंट्स। तो मैं चूज कर लेता हूँ प्रॉप्स और मॉडल। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दिस स्टेट इन रिएक्ट कैन बी अपडेटेड बाय कॉल सेट स्टेट मेथड, दिस कॉल्स आर नन ऑफ द अबव, asynchronous in nature, synchronous in nature, are asynchronous but can be made synchronous when required। तो मैं asynchronous in nature पर क्लिक कर देता हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कीज आर गिवन टू अ लिस्ट एलिमेंट्स इन अ रिएक्ट, दिस की शुड बी, क्वेश्चन ये है, यूनिक अमंग द सिबलिंग्स ओनली, नन ऑफ द अबव, डू नॉट रिक्वायर्स टू बी यूनिक, यूनिक इन द डोम। तो मैं चूज कर लेता हूँ यूनिक इन द डोम रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, फॉर कंट्रोल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ऑप्शन दिए सोर्स ऑफ ट्रूथ इज डोम, नन ऑफ द अबव, सोर्स ऑफ ट्रूथ इज कंपोनेंट स्टेट, सोर्स ऑफ ट्रूथ कैन बी एनीथिंग। तो मैं एनीथिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है रिगार्डिंग रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ ऑप्शन सी, दैट इज फंक्शन कंपोनेंट्स कैन हैव ए स्टेट। अब 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि रिगार्डिंग रिएक्ट जेएस इवेंट विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं रेंडमली चूज कर लेता हूँ ऑप्शन सी, इवेंट रेज इन पेरेंट कंपोनेंट कैन बी हैंडल्ड इन चाइल्ड कंपोनेंट। अब जो कि 11th सेक्शन है, राइट एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम आपको डालनी पड़ेगी, आपको सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी रिएक्ट जेएस में। और आपका 12th क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिकर्सिव एल्गोरिथम टू एलिमिनेट ए कैरेक्टर इन ए गिवन स्ट्रिंग। एग्जाम इनपुट में इनपुट स्ट्रिंग दी है, प्रोग्रामिंग इज एन इंटरेस्टिंग फील्ड सिंस इट गिव्स अस द सुपर पावर टू कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम। तो आपका इनपुट कैरेक्टर आई होना चाहिए और इनपुट स्ट्रिंग में क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग एज एन इंटरेस्टिंग फील्ड सिंस इट गिव्स अस द सुपर पावर टू कंट्रोल सुपर सिस्टम। तो आपको ऐसा आना चाहिए आपको इधर। तो आपको अपना आंसर टेक्स्ट में इधर फील्ड लिखना पड़ेगा कि कैसे आएगा ये। तो मैं टेस्ट फिनिश कर देता हूँ गाइस, टेस्ट कंप्लीट हो गया। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, सी यू सून। तो टेस्ट कंप्लीट हो गया गाइस, बाय बाय।